Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nazish Ali and I am teacher of Metropolitan Foundation School. Welcome to our online class. Okay students, today I am doing a very interesting activity and this activity name is puzzle activity. I have some puzzles. आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ puzzles हैं और यहाँ पर कुछ numbers हैं. Its numbers, its quantity and its inwards name. Okay. And I put okay students, I put random numbers on the card sheets and then firstly हम जो है इस एक्टिविटी में बेसिकली ये करने वाले हैं कि हम इस पज़ल को काउंट करेंगे. मींस हम क्वांटिटी काउंट करने के बाद हम इस क्वांटिटी को यहाँ पर शो करेंगे और फिर हम उसके ऊपर दी गई पिक्चर को काउंट करेंगे. उसके साथ ही हम अपने नंबर ऐड करेंगे और फिर हम यहाँ से सर्च आउट करेंगे अपना इनवर्ड. So let's start. So we come from first puzzle and the first puzzle picture is burgers. Wow, and how many burgers on this puzzle? Count with me. 1, 2, 3 and 4. So we put this puzzle and now we search from the number of 4. Where is 4? Where is 4? Where is 4? And there is 4. So we put the number of 4 and we put like this. Now यहाँ पर एक और पजल ज्वाइन होने वाला है. सो हम यहाँ पर सर्च आउट करेंगे अपना इनवर्ड नंबर. वेयर इज 4? FOUR 4. वेयर इज 4? वेयर इज 4? वेयर इज 4? एंड देयर इज 4. सो we put the inward puzzle and match like this और इट्स कंप्लीट पजल और ये हमारा पजल कंप्लीट हो गया. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू डोंट हैव एनी पजल सो you draw a card, you cut the card sheet and draw the number, draw the picture and draw the inward counting and then you play this game. Okay, now we put and we come from next. Okay, the next puzzle is zebra. And how many zebra on this puzzle? 1, 2. So its quantity is 2. So we put in the center of this card sheet and then we search where is 2. Where is 2? Where is 2? Where is 2? And there is 2. Okay, we put and like this. And where is 2? In inward. TWO2, TWO2, TWO2 and we search it finally and we complete this puzzle. We complete this puzzle और हमने ये puzzle complete कर लिया है. Now हम इसे उठाकर और फिर रखेंगे and we come from next and we have some balloons. How many balloons in this puzzle? Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. 14 puzzles. So it's 14 balloons. Where is 14? Where is 14? Where is 14? Now we search the number of 14. Where is 14? Where is 14? And there is 14. So we put and add like this. And where is the number inward counting of 14? Where is 14? Where is 14? And the spelling of 14 is FOUR 4TEE 14. So there is. Okay, and
add like this, and it's complete. Okay, now we come from this puzzle. How many puzzle? 1 2 3. How many pictures in this puzzle? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So we put the center on this card sheet. And where is the number of 9? Where is the number of 9? And finally I search it. Okay. And we put like this. And now where is 9? And the spelling of 9 is N-I-N-E, 9, and there is 9. So we put and complete this puzzle. Number, quantity and inward name. Number, quantity and inward name. Now we put like this and we come from next, and the next is train. And how many train on this puzzle? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. So we put in the center of this card sheet. And where is the number of 7? Where is the number of 7? And there is 7. So we put like this, we join it. And where is the inward counting of 7? And the spelling of 7 is S-E-V-E-N, 7. And there is 7. So we put and join it like this. Okay, it's complete. Number, quantity and inward counting. Now we come next, and the next is dogs. 1 2 3 4 5. We put in the center of this card sheet. And where is 5? Where is 5? Where is 5? And there is 5. So we put and join it like this. Okay, and where is inward counting 5? F-I-V-E, 5. F-I-V-E, 5, and there is 5. So I put and join it like this. ये सारे नंबर्स, सारी क्वांटिटीज़ मैंने जो है वो सीक्वेंस वाइज नहीं रखी है. पज़ल का मतलब ही होता है कि हमें सर्च करना है और उसके साथ ज्वाइन करना है. नाउ वी कम फ्रॉम नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज बोर्ड्स. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. Okay, I put in the center of this card sheet. And where is 18? Where is 18? Where is 18? And there is 18. Okay, I put and join it like this. And where is inward counting 18? E-I-G-H-T, 8. T-E-E-N, 18. Okay, I put and join it like this. Okay, it's complete. Number, quantity and inward. Okay. Now we come next, and the next is butterflies. How many butterflies? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. And 10 is, and where is 8? Where is 8? Where is 10? Where is 10? Where is 10? And here is 10. Okay, we put like this. And where is the inward counting of 10? T-E-N, 10, T-E-N, 10, T-E-N, 10, and there is 10. So we put like this, and it's complete. Number, quantity and inward. Now we come next. And the next is shoes. And how many shoes? 1 2 3 4 5 and 6. 6. Okay.
we put in the center of this card sheet, and where is 6, and here is 6. So we put and join it like this. Now we come next, and the next is inward. Where is 6? SIX, 6x, SIX 6. Okay, and we put like this, number, quantity and inward. Now we come next and we put this card sheet and how many dolphin on this puzzle. Count with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So where is our number? 20 number. 20 20 20 20 20 20, and here is 20. I put and join it like this. Okay, and where is inward? 20, TWENTY, 20, TWENTY, 20, and I search it and join it like this. Okay, and finally it's complete. Number, quantity and inward. Okay, I put and drop it like this. Now we come next, cats. And how many cats on this puzzle? 1 2 3, 1 2 3. And where is the number of 3? Where is the number of 3? And 3. Okay, I put and join it like this. Okay, and where is 3? THREE3, and there is 3. So we put and match it like this, number, quantity and inward. Okay, now we come next, and the next is car. 1 car. How many cars? 1 car. So where is the number of 1? 1 1 1, there is 1. I put and join it like this. Okay, and where is inward counting? 1, ONE, 1, ONE, 1, ONE, 1, and there is 1. I put and join it like this, number, quantity and inward. और इसी तरह से आपने अब जो हमारे पास पिक्चर्स रह गई हैं, हमारे पास नंबर्स रह गए हैं और हमारे पास जो है वो इनवर्ड्स रह गए हैं, अब ये आपको वीडियो सेंड की जाएगी। देन अब आपने ख़ुद से इसे मैच करना है। अगर घर में आपके पास इस एक्टिविटी के लिए पजल्स नहीं हैं, देन आपके पास एक कार्ड शीट है, आप उस कार्ड शीट को टच करें, उसके ऊपर पिक्चर्स ड्रॉ करें, दूसरी पर नंबर्स लिखें और तीसरी पर इनवर्ड काउंटिंग लिखकर उसको सबको मर्ज करना है और देन यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। ओके, अब जो है वो हम जाएंगे मिस इकरा की तरफ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एज़ यू नो, अभी हमारी जो मिस नाजिश है उन्होंने एक बहुत अच्छी सी हमें पज़ल एक्टिविटी करवाई है और वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। जैसे कि आप लोग मैथ्स में भी इनवर्ड्स और काउंटिंग वगैरह सब सीखते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग सीखते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग सीखते हैं, तो उसमें आपके पास बहुत सारी काउंटिंग होती है, इनवर्ड्स काउंटिंग होती है। तो ये जो पज़ल एक्टिविटी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और एज ए एक्टिविटी भी उसे कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे यूज़ करें, कार्ड शीट के ज़रिए इसे इस्तेमाल करें और इसको घर में भी हम इसे बना के अच्छे से एक्टिविटी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इंग्लिश के अंदर भी कर सकते हैं और उर्दू के लिए भी हम कर सकते हैं। हुरूफ तोड़िए, जोड़िए, जमा कीजिए, ये सब चीज़ें आप जब उर्दू में पढ़ते हैं आप उसके लिए भी कर सकते हैं। हम ऐसे लफ्ज़ और ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वो एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि पर्सनली मुझे एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमें उसे सीखने को बहुत मिलता है। वो बहुत अलग सी एक्टिविटी है और आप हमेशा उसे अच्छा सीख सकते हैं उस एक्टिविटी से। आप उसको अपनी बड़े होकर भी आप उसको उस एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि टुडे
वी आर स्टार्टिंग आवर ड्राइंग लेसन मंथ ऑफ फरवरी। हमारा मंथ ऑफ फेब का जो लेसन है, सिलेबस है, वो स्टार्ट हो चुका है। दैट्स वाई आई एम हेयर विद दिस बुक। वरना कि हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, कुछ न्यू बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। सो आज हमारा मंथ ऑफ फेब का लेसन शुरू हो गया है। सो वी आर डूइंग आवर बुक वर्क। ओके डियर, नाउ ओपन योर बुक। Your page number is 32. This page, I know you all are आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं ये वाला पेज कर चुके हैं। आप लोगों ने टीचर की इंस्ट्रक्शंस के बगैर आप लोगों ने उसमें बहुत सारा कलर कर दिया है। हालांकि इस पेज में हमें बिल्कुल भी कलर नहीं करना था, हमें इसके अंदर कोलाज एक्टिविटी करनी है। टुडेज़ एक्टिविटी नेम इज़ फ्रूटी कोलाज। ओके, हमारा आज का जो चैप्टर है या हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रूटी कोलाज। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उस पर कलर कर दिया है, तो ठीक है, जो हो चुका है वो हो चुका है। अब हम इस पर आप उसी के ऊपर अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं अगर आपने कलर कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो आज आप टीचर की तरह सेम बिल्कुल ब्लैंक पेज पर वर्क करेंगे। ठीक है, नाउ read question with me, then we will start our work. Okay dear students, read topic to first topic, fruity collage। fruity collage क्यों लिखा है यहाँ पे? वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत अमेजिंग फ्रूट्स बने हुए हैं। हर सीज़न के फ्रूट्स हैं हमारे पास। अभी रिसेंटली हमारे पास ऑरेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। हम पेयर देखते हैं या गावा देखते हैं, बनानास रोज़ देख रहे हैं। आजकल बनानास बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए भी। उसमें बहुत कैल्शियम होता है, हमें वो भी लेने चाहिए। ठीक है, तो आजकल हमारे पास बनाना बहुत अच्छा आ रहे हैं। रेड एप्पल्स आ रहे हैं। आजकल हम लोग स्टॉल्स पे देखते हैं, फ्रूट स्टॉल्स पे, जो हमें हमारे घर के बाहर, और हम उसे मार्केट में भी देखते हैं। बहुत सारी मार्केट्स में फ्रूट स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, दुकानें जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। वहाँ पे हम बहुत खूबसूरत कलर के हम फ्रूट्स देखते हैं, जिससे हमारा दिल करता है कि हम उसे खाएं। उसकी खुशबू भी आ रही होती है दूर दूर तक। तो आजकल हमारे जो 3 फ्रूट्स बहुत हमारे इन हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल, वो है एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। ओके, आई होप कि आपको ये आजकल के फ्रूट्स आप लोग सब यूज़ कर रहे होंगे अपनी डेली लाइफ में, उसे ईट कर रहे हैं। क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत हाइड्रेट करके रखते हैं, और एप्पल खाने से हमें बहुत आयरन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा आयरन मिलता है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है। और बनाना से हमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए वैसे ही बहुत है। हमारी जो बोन्स हैं जो वो दर्द करती हैं जब हम भागते हैं या हम रेसिंग करते हैं, या जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम मम्मा पापा से सुनते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पाँव में बड़ा दर्द हो रहा है। तो हम सब के लिए क्या ज़रूरी होता है? कैल्शियम ज़रूरी होता है, क्योंकि हम हमारी हड्डियों को, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो हमें बचपन से हमेशा तक हमें फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा ईट करना चाहिए। बहुत सारी फ्रूट्स को, हर फ्रूट के सीजन्स के फ्रूट्स को हमें अपनी डाइट में इसको शामिल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स खाने से हम हेल्दी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और हमारा जो माइंड है वो बहुत अच्छे से चलता है, और हमें सुस्ती महसूस नहीं होती है। सुबह सुबह हम फ्रेश उठते हैं। ठीक है, हमें उठते साथ एक एप्पल या एक बनाना मिल्क के साथ ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारी डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो, आज तो हम लोगों ने बहुत सारी फ्रूट्स के ऊपर बात कर ली है, क्योंकि आज हमारा जो मेन ड्राइंग का टॉपिक है वो फ्रूट्स है। और जैसे कि आप लोग हमेशा स्कूल आते थे, जब आप लोग आते थे, तो जब मैं अपने बच्चों से मिलती हूँ तो आप लोगों को बहुत सारी बातें सिखाती हूँ। ठीक है, टीचर का काम होता है आप लोगों को नॉलेज देना और आपको बताना कि आप लोगों के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्या गलत है और क्या सही है। इसीलिए मैंने आपको फ्रूट्स के लिए बताया है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से फ्रूट्स खाते हैं। हम फ्रूट चाट बना के भी खाते हैं, रमज़ानों में भी खाते हैं। तो एक छोटी सी क्लिप आनी चाहिए मेरे पास, एक छोटी सी वीडियो बनाइएगा। सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे बच्चों को वीडियो भी देखनी है, और साथ साथ आप मुझे एक अच्छी सी, एक छोटी सी वीडियो, भले 2 मिनट्स और 5 मिनट्स की आप वीडियो बनाइएगा।
और ग्रुप पे सेंड कीजिएगा जिस दिन आपके पास ये वीडियो आती है, या आप उसके नेक्स्ट डे भी सेंड कर सकते हैं। 2 दिन का आपके पास टाइम होगा। आप मुझे एक अच्छी सी अपनी आपका जो फेवरेट फ्रूट है आप उसके लिए मुझे बताइएगा कि उसका कलर कौन सा है, ठीक है। और जैसे कि आजकल ऑरेंजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, और कोई बात नहीं अगर वो फ्रूट इस नहीं हो, जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही है तो हमारे पास मैंगोज़ नहीं होते हैं। समर में मैंगोज़ आते हैं, विंटर्स में नहीं आते हैं। तो ओके, आप चाहें तो कोई एक पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं पेज पर, और उस पर अच्छा सा कलर कर सकते हैं। जो फ्रूट आपके कलर का है वो फ्रूट कलर कर सकते हैं सेम कलर, और आप उस पर अच्छी सी प्यारी सी अपने साथ एक वीडियो बनाइएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा फ्रूट आपका फेवरेट है। अभी हमने यहाँ पे फ्रूट डे भी बनाया था जिसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे। अभी हमारे विंटर डे पे हमारा जो टॉपिक था वो फ्रूट्स था, फाउंडेशन ईयर 2B का फ्रूट्स था, जिसमें सब बच्चा अनार, कोई मौसम्बी, कोई ऑरेंजेस, मैंगो, बनानास, एप्पल्स, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। तो हमें फ्रूट्स के बारे में तो बहुत कुछ नॉलेज है अब तो, क्योंकि टीचर आपको दे चुकी हैं, ठीक है। चलिए, अब तो आज हमने बहुत सारी बातें की है, लेकिन मुझे ये वीडियो लाजमी आनी चाहिए क्योंकि सबको कोई ना कोई फ्रूट पसंद होता है। तो आप मुझे उस फ्रूट के बारे में बताइएगा, ठीक है। चलें, अब हम अपनी वीडियो के आगे बढ़ते हैं। हमारी जो लेसन की जो सबसे पहले हमारी जो क्वेश्चन है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई, हम सबसे पहले उसे रीड कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना है इसके अंदर। ओके, टेक ग्रीन, red, yellow and orange glazed paper from the pocket which is given in the last page of this book, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे, कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कौन से पॉकेट की बात की गई है जो हमारे लास्ट पेज पे, और कुछ को वैसे भी पता होगा, हम पहले भी हम अपनी पॉकेट से निकाल चुके हैं। मेरे ख्याल से तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पेज हम घुमा रहे हैं, और इसके लास्ट पेज पे हमारे पास चंद पेपर्स हैं। लाइक अगर आप लोगों ने इसे वेस्ट नहीं किया होगा तो मेरे हिसाब से आपके पास येलो ग्रीन फुल होंगे, और येलो और ऑरेंज और ग्रीन का आपके पास पीस पड़ा हुआ होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यूज़ की चीज़ है, और भी हमारे पास बहुत सारे कटे हुए पेपर बचे, लेकिन आज हमें इन सब का काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे अंदर रख देते हैं, ठीक है। ये हमने अंदर रख दिया है क्योंकि ये हमारी आज की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सो हम इसके अंदर रख रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने अंदर रख दिया है, हम इसे बंद करते हैं। आज की हमारी ज़रूरत है येलो, ग्रीन, रेड और ऑरेंज। तो हमारे पास येलो, ग्रीन और ऑरेंज तो निकल आया, लेकिन हो सकता है आप लोगों के पास रेड अब ख़त्म हो चुका हो, तो हमें कोई बात नहीं। मैंने एक नॉर्मल सा ग्लेज पेपर ले लिया है जो हमारे पास घर में भी मौजूद होते हैं, वरना आप स्टेशनरी से इसे बाय भी कर सकते हैं, और मैंने इसको सेम इस साइज़ का कट कर लिया है, ठीक है। लेकिन इट्स ओके, अगर आपके पास ना हो तो चलेगा, आप कलर पेपर यूज़ कर सकते हैं। कलर पेपर या आपके पास ग्लेज पेपर, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने एक शेप दे दिया है, आप इट्स ओके कोई भी शेप ले लीजिएगा, हमें तो उस पर स्टिक करना है, ठीक है। ओके, हमने इसमें से पॉकेट में से निकाल लिए पेजेस। ओके, टेयर देम सेपरेटली इनटू स्मॉल बिट्स, स्टिक देम इन द फ्रूट शेप्स फॉलोइंग द कलर ऑफ ईच, ठीक है। अब क्या कहा गया हमें इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारे पास जो पेपर्स दिए हुए हैं, हमारे पास हमारे जो कलर पेपर्स है, हमें इसकी शेप के कट करने हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ इट ईजियर इफ़ यू ब्रश सेम एरिया विद ग्लू एंड देन स्टिक द पीसेस वन बाय वन यू मे ओवरलैप द पीसेस। यहाँ पे लिखा है या तो आप ग्लू को ब्रश से लगा के इसको स्टिक कर सकते हैं, या तो आप ग्लू स्टिक्स पे भी चिपका के हम इसके ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है, पीसेस पे। तो हम अपना ग्लू स्टिक यूज़ करेंगे क्योंकि इससे हमारे जो पेजेस होते हैं वो इजीली इस पर स्टिक हो जाते हैं, और अगर हम सिंपल ग्लू लगाते हैं तो उससे क्या होता है, पेजेस फट जाते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल से ग्लू ले लिया है, वन पेंसिल
and 1 scissor and 4 papers. Okay, now first of all we are using this red for this apple. Okay, ये देखिए जब मैं इस पर एप्पल रख रही हूँ तो मुझे इसका शेड पड़ रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी इसका शेप नज़र आ रहा होगा। ये देखिए शायद आपको अब शो हो रहा हो कि हमें इसके नीचे की लाइंस नज़र आ रही है। हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको अब अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि हमें इसकी लाइंस, एप्पल हमें ड्रॉ हुआ हुआ नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एप्पल को ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, हम इस एप्पल को जल्दी से ट्रेस करके आती हूँ, आप भी जल्दी से ट्रेस कर लें और उसके बाद फिर हम उस शेप को कट भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ट्रेस और कट करके फटाफट आती हूँ, आप भी जल्दी से कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने इसमें कट करके इसका डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये हम इसके इस तरीके से स्टिक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है मैंगो और बनाना जो सेम। अच्छा, आप चाहें तो ग्रीन से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो येलो से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास ग्रीन तो कम है, दैट्स वाई हम इसमें दोनों में येलो यूज़ करेंगे क्योंकि मैंगो तो वैसे भी येलो होता है। सो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, अब मैं मैंगो का और बनाना का शेप एक साथ कट करके आती हूँ, उसके बाद फिर हम हमारे नेक्स्ट पेयर पे जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा जो ग्रीन पेपर है हम उसे ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसका शेप बनाना है और ये देखिए नज़र आ रहे हैं ना, हमें नीचे से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, टीचर से भी थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि जब हम इसे ट्रेस करते हैं और इसे कट करते हैं तो ये हमारा जो साइज़ है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। नॉर्मली तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़ा सा ये देखें थोड़ा सा नीचे से टीचर से हो गया है, साइड से भी हो गया है, लेकिन बाकी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन हमें ट्रेसिंग बहुत अच्छी करनी है। टीचर भी कोशिश करती है कि आप लोगों की तरह प्यारी प्यारी सी ट्रेसिंग कर सके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कट करेंगे। ओके, और साथ ही साथ ऑरेंज का भी हमें कट करना है। ये देखिए नज़र आ रहा है हमें, नज़र अंदर से शेप, ये देखिए लाइन नज़र आ रही है हमें, बिल्कुल हमें इसके साथ साथ चलना है और उसे ट्रेस करना है। सबसे पहले हम पेयर का करके आते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने कट कर लिया है, हमारा पेयर भी कट हो गया है। अब हमारी बारी है ऑरेंज कट करने की। ओके, सो अब हम ऑरेंज को कट करने वाले हैं। मैं जल्दी से ऑरेंज कट करके आती हूँ, फिर हम इसका जल्दी से ग्लू से स्टिक कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैंने ऑरेंज भी कट कर लिया है। सेम शेप तो नहीं हुआ, टीचर का भी आप लोगों का भी शायद मुश्किल हो थोड़ा। ठीक है, लेकिन हमने कट कर लिया है, हम इसे ट्रेस करके कट करेंगे। दैट अब हमें स्टिक करने की बारी है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल टेक आवर ग्लू। ओके, नाउ we are using this glue to stick our objects। ठीक है, हम अपने जो फ्रूट्स हैं अब हम इसे स्टिक करेंगे। हम अच्छे से ग्लू लगा लेते हैं लाइक दिस। ओके, अब हमारा जो एप्पल है, we will stick एप्पल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैंगो। ये हमारा मैंगो, इसे हम स्टिक कर लेते हैं। नाउ पेयर। अब हमारे पेयर की बारी है। अब हम अपना पेयर ले लेते हैं और अब हम इसको भी स्टिक करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ ऑरेंज। ओके,
ये हमने इसको भी चेक कर लिया है। नाउ लास्ट एंड नॉट लीस्ट हमारा बनाना। ओके स्टूडेंट्स, ये हम अपने बनाना को सही तरीके से चेक कर देंगे। हमने बनाना को भी पेस्ट कर दिया है, चेक कर दिया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस वर्क इज़ कंप्लीट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ हमारी जो ये बचे हैं वैसे तो किसी काम के अब नहीं है, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट वर्क इसके रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप हमें इसे ज़रूर सेव कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।